1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। फर्स्ट जॉन 2 चैप्टर 15 वर्स से 29 वर्स। फर्स्ट जॉन 3 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स। एजेकियल 45 चैप्टर से लेकर 46 चैप्टर तक। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15 वचन से 29 वचन तक। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 1 वचन से 10 वचन तक। यहजकेल की भविष्यवाणी की पुस्तक 45 अध्याय 46 अध्याय। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे PSI बाइबल में से। फर्स्ट जॉन 2 चैप्टर 15 वर्स से पढ़ेंगे। लव नॉट द वर्ल्ड नीदर द थिंग्स। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं इन वचनों को हमें सीखा पवित्र आत्मा और मसीह जीवन के अंदर हमें तेज बना, हमारे अंदर की कुव्वत इस्तेमाल हो, ऐसा तेज बना हमें। नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट जॉन 2 चैप्टर 15 वर्स से आगे पढ़ रहे हैं 29 वर्स तक। फिर 3 चैप्टर में जाएंगे, 1 वर्स से 10 वर्स तक पढ़ेंगे। पहले हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हैं। 15 verse. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists. Whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. But ye have an unction from the Holy One. And ye know all things. I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. And this is the promise that he hath promised us, even eternal life. These things have I written unto you concerning them that seduce you. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming. If ye know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of him. Chapter 3 1 verse से 10 वर्स तक आगे पढ़ते जाएंगे. Of God's love toward us, etc.
First verse, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doeth not yet appear what we shall be. But we know that when we shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. For ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Hallelujah. देखा, कानूनी अधिकार की बात मैंने आपको बोली थी. कन्फेशन एंड वो मेडिटेशन के वर्सेस जो है, विश्वास की घोषणा, कबूली, उसके अंदर मनन करने के वचन जो है, उसके अंदर मैंने ये बात को सिखाया. कानूनी अधिकार लेके बैठे हुए हैं हम. हालेलुया. तो आप ये बात से वाकिफ हो जाना हमको ज़रूरी है. ठीक है. कानूनी अधिकार बनता है हमारा तुम्हारे काम बिगाड़ देने का. कानूनी हक है हमारा, ओके, मसीही बनाने का, प्रभु यीशु के राज्य में लोगों को लेकर आने का कानूनी हक है हमारा. आप उसको आड़े नहीं आ सकते हैं. हालेलुया. 9 वचन, whosoever is born of God doeth not. Whosoever is born of God that doeth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin. एक मिनट, ये वचन इस प्रकार से, whosoever is born of God doeth not commit sin. देखिए, हमारा जन्म अब जो है परमेश्वर के आत्मा से हो चुका है. बस हमारी पहचान अब जो है प्रभु यीशु मसीह है. खत्म बात. अब जो आप लोग कोई गैर मसीह हो और आप हमारी पहचान को, हमारे पुराने जो परमेश्वर में नहीं थे, हम उद्धार पाए हुए नहीं थे, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिए हुए नहीं थे, उस समय जो हमारी पहचान रही होगी, हम कोई भी जाति धर्म मानने वाले लोग रहे होंगे, उसके अंदर हमने कुछ भी काम किए होंगे, हमारी पीढ़ी का नाम कुछ भी हो सकता है, हमारे बाप दादाओं के गलतियां कुछ भी हो सकती है. जादू टोनाओं के पास जाकर आप वो सारी बातों को ढूंढ कर लेकर आके और सारे कबाड़ा आप हमारा पीछा करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है उसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है. हालेलुया. यहाँ पे क्या लिखा है? 9 वचन हिंदी में जब पढ़ेंगे तब ध्यान देना. Whosoever is born of God doeth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. हालेलुया. तो हमारी जाति बदल चुकी है, हमारा जो फाउंडेशन है जन्म लेने का वो बदल चुका है. अब हम परमेश्वर की जाति कहलाते हैं. हम जो जन्म लिए हैं, नया जन्म कहलाया जाता है, जो पवित्र आत्मा से जन्माया जाता है, जो परमेश्वर का बीज हम में रखा गया और वो बीज हमारे अंदर जन्म लिया है. हालेलुया. ये देखिए 10 वचन क्या कहता है? इन दिस द चिल्ड्रन ऑफ गॉड आर मैनिफेस्ट, एंड द चिल्ड्रन ऑफ द डेविल whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Amen. तो सिर्फ गैर मसीहों के बारे में नहीं है ये बात. 10 वचन ये इवन उन लोगों के लिए है जो अपने ही मसीही भाई बहनों के साथ एक मन होकर नहीं रहते हैं. हालेलुया. अगर आपका अभिषेक का लेवल ऊंचा है तो आप नीचे लेवल के अभिषेक वाले के साथ गहरे दोस्ती में नहीं हो पाते हैं. ये बात सही है.
ओके, क्योंकि उसकी गलतियां आपको बर्दाश्त नहीं होती है, बराबर है आपका। ओके, लेकिन हम उसको तुच्छ नहीं जान सकते हैं, फिर भी हमको उसे प्रेम में रखना है, फिर भी हमने उसके ऊपर जलन नहीं करना है, फिर भी हमने उसके ऊपर गुस्सा होकर उसका अपमान नहीं करना है। ये सब करेंगे तो भी हमारा मसीह होने का चाल चलन बिगड़ जाता है। अगर हमारे से ज़्यादा ऊंचे अभिषेक पे कोई है और हम उस स्तर पे नहीं है और वो हमारे साथ सहभागी नहीं रखना चाहते हैं, दोस्त बनना नहीं चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हम उसके साथ टेढ़े हो जाते हैं। हमको लगता है बस वो तो अपने आप की ही सोचता है, उसको तो हमारा ख्याल ही नहीं है। ये भी बात आपको गैर मसीही बना देता है। ओके, आपको कुछ भावनाएं अपने शरीर से इन स्तर के विषय में नहीं लगाना है। ओके, ये स्तर का मामला है। आपका कितना अभिषेक है, उतना अभिषेक में अगर कोई है आपके संगति को पसंद करेगा। आपका जितना अभिषेक कम है वो इंसान आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आपका अभिषेक ज़्यादा है तो आपके संगति में वो रुक नहीं पाता है। ओके, तो हर प्रकार के संगति का असर जो है अभिषेक के लेवल से रहता है। हमको एक दूसरे के साथ कुछ भी बुरा बर्ताव, मन की कड़वाहट, मन के अंदर कुछ छिपे कपट नहीं रखना है। अगर ऐसा भी रखेंगे तो हम गैर मसीह हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे अभी हिंदी BSI बाइबल में से पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 15 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। 3 अध्याय 1 वचन से 10 वचन तक पढ़ते जाएंगे। जब 3 अध्याय आएगा 9 और 10 वचन को आप देखना क्या लिखा है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया। हम पढ़ेंगे पतरस, आई एम सॉरी, पतरस नहीं, यूहन्ना। ओके, यूहन्ना है क्या पतरस से? 1 मिनट। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15 वचन से लेकर पढ़ते जाएंगे 3 अध्याय 10 वचन तक। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15 वचन से पढ़ते जाएंगे, 29 वचन तक है, और 3 अध्याय पहले वचन से 10 वचन तक हम पढ़ते जाएंगे। हम शुरू करेंगे 15 वचन से। 2 अध्याय 15 वचन से, संसार से प्रेम न करो, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मसीह विरोधी, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से है, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठा सत्य की ओर से नहीं, इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। समझ में आया? जो हम सीख रहे परमेश्वर का वचन, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को हम सीख रहे, उसका असर हमारे अंदर बने रहना चाहिए। ओके, उसकी पहचान हमारे अंदर से ओझल होनी नहीं चाहिए। तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे।
समझा? तो कितना जरूरी है, ये अभिषेक का मामला है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ओके मसीहों, ओके ये अभिषेक का काम है। अगर परमेश्वर का वचन रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के अंदर से आपकी पहचान बना रहा है, आपके अंदर का माहौल तैयार कर रहा है, तो वो कमरा बन चुका है, अभिषेक शक्ति का इस्तेमाल करने वाला कमरा बन चुका है, घर बन चुका है वो, ओके लेकिन वो वहीं तक सीमित रहेगा जहां तक आप वो वचनों का आपके अंदर का माहौल बनाया हुआ है, ओके जैसे ही आप उस वचन के माहौल को छोड़ देंगे, पवित्र आत्मा की शक्ति का काम भी आप नहीं देख पाओगे। ये है कनेक्शन वचन और पवित्र आत्मा की शक्ति का, ओके और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। परमेश्वर की संतान, अतः 28 वचन से आगे, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। मैं और एक बार 26 वचन से आगे पढ़ते आना चाहती हूँ। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। परमेश्वर की संतान, 28 वचन से आगे, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हालेलुया। 3 अध्याय पहले वचन से 10 वचन तक देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। देखा यहाँ क्या लिखा है, उसका प्रकट होने का कारण क्या था? उसको पृथ्वी के आकर क्रूस का बलिदान करने का कारण क्या था? तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। पापियों को ले जाए ऐसा बोला है क्या? पापियों को मार डाले ऐसा है क्या? नहीं, पापों को हर ले जाए। जगत के अंदर पाप है, ओके जगत के अंदर पाप है। और यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या कहा? ये देखो परमेश्वर का मेमना, जगत के पाप हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना। ओके जगत के अंदर किसको लेकर गया? क्रूस का बलिदान करके पाप को निकाल ले गया। हालेलुया। पाप को निकाल ले गया तो पाप है क्या यहाँ पे? नहीं है। समझ में आया? और देखिए 4 वचन को और एक बार पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ओके जो कोई पाप करता है तो पाप को निकाल के लेके गया, प्रकट हुआ। पाप का काम क्या है वो बता रहा है यहाँ पे, व्यवस्था का विरोध करना।
ओके, पाप तो व्यवस्था का विरोध है और पाप ही को प्रभु यीशु मसीह जगत के अंदर से निकाल के लेके गया, ठीक है, और उसके स्वभाव में पाप नहीं, ठीक है, उसके अंदर पाप नहीं है, वो पाप को निकाल के लेकर चला गया। ओके, जो कोई यीशु मसीह में बना रहता है, जो कोई उसमें बना रहता है, वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। ओके, तो पाप कहाँ है? जगत के अंदर रहता था, है ना, जगत के अंदर पाप है, ठीक है, और पाप को प्रभु यीशु मसीह हर ले गया, ठीक है। अब हमारे लिए पाप नहीं है, अब मनुष्य के लिए क्या है? धार्मिकता है। आप यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को ग्रहण करते हैं तो आप यीशु मसीह के अंदर निष्पाप हो जाते हैं। ओके, क्योंकि वो निष्पाप है, इसके लिए आप उसके अंदर भरोसा करने की वजह से आप निर्दोष ठहराए जाते हैं, आप निष्पाप ठहराए जाते हैं, और इसके लिए पाप के व्यवस्था के द्वारा आपका दंड नहीं ठहराया जाता, ठीक है। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, ठीक है, उसके आज्ञा पालन में आप बने रहते हैं तो आप पाप नहीं करते हैं, ठीक है। जो कोई पाप करता है उसने न तो, यानी ये अभी तक वो गैर मसीह है जो अभी तक यीशु मसीह को पाप की माफ करने वाला नहीं माना। ओके, पाप को माफ करने वाला हमको मानना पड़ेगा यीशु मसीह को। ओके, हमको कबूल करना पड़ेगा यीशु मसीह पाप को माफ करने वाला प्रभु है। ओके, जब तक हम उसके क्रूस के बलिदान को ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकारते नहीं है, पाप के ही हम संतान बने रहते हैं। ओके, और ऐसा व्यक्ति जो पाप के अधीन है और वो जब पाप करता है तो उसने यीशु मसीह को देखा नहीं है और ना ही यीशु मसीह को जानता है। हालेलुया। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। हालेलुया। तो पाप का भी राज्य यहाँ पर चल रहा है, यानी पाप की प्रभुता उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने यीशु मसीह को पापों की माफी करने वाला प्रभु ग्रहण नहीं किया है, स्वीकारा नहीं है। हालेलुया। तो उनके ऊपर फिर दूसरे लोग जो गैर मसीह है उनके ऊपर कौन प्रभुता कर रहा है? कौन अपनी ज्यादती दिखाता है, अपना अधिकार दिखाता है? शैतान दिखाता है। हालेलुया। तो उनके काम किसकी ओर से होंगे? शैतान के चालाकियों से होंगे। ओके, शैतान के इंस्ट्रक्शन से वो काम करेंगे और उनके हरकतों को, चाहे वो अच्छा काम भी करेंगे तो भी वो अच्छा नहीं कहा जाएगा, उनको पापी कहा जाएगा। ओके, क्योंकि उनका चलाने वाला कौन है? शैतान। और शैतान परमेश्वर के विरोध उनको लेकर आता है, परमेश्वर का कहना मानने से इनकार करने वाला उनको बनाता है। हालेलुया। इसके लिए मसीह विरोधी बन जाते हैं। ओके, इसके लिए मसीहों को सताने वाले बन जाते हैं, इसीलिए मसीहों को मार डालने वाले बन जाते हैं। ओके, इसीलिए मसीहों को परेशान करने वाले बन जाते हैं। ये सारे लोग जो बन जाते हैं ऐसा करने में, तो वो किसके कारण बने हैं? उन्होंने किसके सूचनाओं को फॉलो किया है? शैतान की सूचनाओं को। समझ में आया? सिर्फ इतना ही कारण है कि वो शैतान के संतान बन गए। ठीक है, उसकी ही वो मानते हैं, यीशु को मानने को तैयार नहीं है कि वो पाप को माफ कर सकता है और पापों से वो उनको छुड़ा सकता है, वो मानने को तैयार नहीं है। ओके, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया, उसका काम ही है परमेश्वर के विरोध जाना। ओके, आप जब भी वचन को लेकर किसी के सामने आओगे, उसने विरोध किया तो आप डरना नहीं है, क्योंकि वो विरोध का आत्मा शैतान है, वो इंसान नहीं। इसके लिए इंसान के पास दोबारा वचन लेकर जाने से मत डरिए, क्योंकि उसके अंदर का शैतान विरोध करेगा, वो इंसान नहीं। वो इंसान को तो चाहिए कि आप वचन सुनाएं, लेकिन शैतान चाहता है कि वो इंसान वचन ना ले।
ओके, वो वचन को ना स्वीकारे, तो उनके अंदर बैठा हुआ शैतान का आत्मा है जो आपका विरोध करता है। इसके लिए आपको शैतान को नजरअंदाज कर लेना है और इंसान को बारंबार वचन सुनाना है, ओके, ताकि वो इंसान के ऊपर वचन प्रबल हो जाए, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रबल हो जाए और वो इंसान पाप से आजाद हो जाए, शैतान के चंगुल में से आजाद हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। देखिए, ये एक आधा अधूरा पढ़ा मैंने। पाप करता आया है शैतान, ओके, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। तो हमारे पास लीगल ग्राउंड है, ओके, हमारे पास कानूनी अधिकार है, ओके, हम शैतान के कामों को नाश करने वाला कानूनी अधिकार रखते हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। अब हम परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं, हमारे अंदर पाप नहीं है, ये वचन बता रहा है हमको। हाँ, इसके लिए हम पापी नहीं कहला सकते अपने आप को। ठीक है, पाप का असर कहाँ से है? शैतान के संतान में है। समझ में आया? जो शैतान के इंस्ट्रक्शंस को मान के चलता है तो वह पापी ठहराया जाता है। ओके, तो ये प्रकार से जब मसीही लोग हैं, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन प्राप्त किए हुए लोग हैं, तो हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। हम पाप को फॉलो नहीं कर सकते हैं, पाप को फॉलो नहीं करते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर जो मौजूद है ना, वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर मौजूद है, जो हमको पाप को पहचानने की शक्ति देता है और पाप का प्रभुता तोड़ने की आज़ादी देता है। ओके, और यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। इतना बोल्डली लिखा है, कर ही नहीं सकता है, इतना बोल्डली लिखा है। हालेलुया, धैर्य के साथ लिखा है। और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। उसका जड़ ही नहीं है पाप करने का, तो वह पाप कहाँ से करेगा? हालेलुया। कितना भी हमारा आप कुछ भी खोज निकालो, आपको पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उस जड़ के हैं ही नहीं। तो आप कैसे हमको पाप के जड़ में ढूंढोगे? ओके, आप हम में है ही नहीं, वो काम ही नहीं है हमारे अंदर, हमारा जन्म ही नहीं हुआ है पाप के अंदर, तो हमें पाप करने का असर भी नहीं आएगा। हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर मौजूद है, तो परमेश्वर हमारी जड़ है। ढूंढो हमको, जितना चाहिए उतना हमारे अंदर परमेश्वर प्राप्त हो जाएगा आपको। हालेलुया। देखो, शाऊल जब कलसिया को सता रहा था, कलसिया में क्या था? पाप नहीं था, कलसिया में यीशु मसीह था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने टक्कर लगाया, हाँ, कलसिया की खातिर, प्रार्थना के खातिर टक्कर लगाया शाऊल को, और शाऊल को बोला तू मुझे क्यों सता रहा है? शाऊल बोलता क्या बात कर रहा है, मैंने तुझे क्या सताने के मतलब क्या है तेरा? तू कहाँ का, तू कहाँ से, मुझे क्या पता, मैंने तुझे कभी नहीं सताया। ओके, लेकिन यीशु ने कहा जिनको तू सता रहा है तो मुझे सता रहा है। तो हमारी पहचान यीशु मसीह है, यीशु मसीह में पाप नहीं है। ओके, तो हमको सताने वाला यीशु मसीह को सताता है। ओके, तो हमारी प्रार्थना करना यीशु मसीह को उकसाता है, जा जाकर उसको फाइट कर। समझ में आया? यीशु मसीह जिम्मेदारी लेता है हमारी प्रार्थना का कारण बन के कि चल उसको निपटना है। शाऊल का क्या हो गया? वो पाउल हो गया, और पाउल ने क्या किया? पूरा ये किताब लिख के हमको सिखाते बैठा है वो। हालेलुया। उसने परमेश्वर के कामों में अपनी गुलामी की। हालेलुया। अपनी सारी समझ, ज्ञान, बुद्धि को तुच्छ जानकर परमेश्वर की अवस्था में धन्यवाद के हृदय के साथ चलना शुरू किया। आमीन। तो आप ध्यान रखिए, आप हमको ढूंढ रहे हैं, आपको परमेश्वर प्राप्त हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, जब आप हमारे ऊपर आक्रमण लगाते हैं, हम परमेश्वर को दोहाई लगाते हैं। ओके, हम दोहाई लगाए, परमेश्वर आपको निपट लेता है। जब परमेश्वर निपट लेता है तो आपको समझ आता है कि ये परमेश्वर है।
ओके, और उसके पीछे आप हो लेते हैं। ओके, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता है जब आप कुछ भी हमारे विरोध में करने के लिए उठते हैं तो, ठीक है। ये तरह से हमारा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर है। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। जो मैंने स्पिरिचुअल लेवल के हिसाब से, जो अभिषेक के लेवल के हिसाब से जो संगति के मामले आ जाते हैं, तो उसमें कोई किसी का दोस्त बनता है, किसी का नहीं बनता है, किसी की बनती है, किसी की नहीं बनती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैर मसीहों की तरह उनकी नफरत करें। ओके, ये ऐसा नहीं कि हम उनकी निंदा करें, कोई बात नहीं है। वो अपनी जगह में अपने अभिषेक के लेवल में चल रहे हैं, हम अपने अभिषेक के लेवल में चल रहे हैं। हमारे द्वारा हमारी उन्नति परमेश्वर को लाभदायी है, उनके द्वारा उनकी उन्नति परमेश्वर को लाभदायी है। ओके, ना एक दूसरे के बारे में जलन डाह रखना है, बैर भाव ना रखना है, कड़वाहट रखनी है, कुछ नहीं रखना है हमको। अगर ऐसा कुछ करेंगे हम, तो हम गैर मसीहों में गिनती हो जाएंगे। ओके, पापियों में गिनती हो जाएंगे, शैतान के संतान में गिनती हो जाएंगे। आमीन। तो ये तरीके से हमारा जीवन नहीं जीना है हमको। गैर मसीहों के अनुसार हमारे चाल चलन हमको नहीं चलना है। ओके, प्रभु यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर विनती करते हैं, फिट एंड फिक्स करो हमारे इस वचनों में। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हमें इन वचनों में फिट एंड फिक्स कीजिए। हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।